روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ محلہ کانوگن جو کہ ہندوؤں کا اکثریتی محلہ تھا اس کے قریب ہی بیٹھا کرتے تھے۔ اس محلے میں کانوگان کا ایک خاندان رہتا تھا۔ یہ لوگ پردے کے بہت پابند تھے۔ ان کی عورتیں ڈولی میں بیٹھ کر آیا جایا کرتی تھیں۔ کانوگان خاندان کی ایک عورت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ جب بھی آپ گلی میں آ کر بیٹھتے وہ عورت بھی کھڑکی میں آ کر گھنٹوں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نظارہ کرتی رہتی۔ عورت کی شدید خواہش تھی کہ وہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کر لے، مگر آپ ہمیشہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے، اس لیے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن ہندو عورت کی وحشت اس قدر بڑھی کہ اس نے شوق دیدار میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جا گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کو دیکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب محلے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو ہر طرف ایک شور برپا ہو گیا۔ مرنے والی ہندو عورت کے رشتہ دار اس کی لاش اٹھانے کے لیے حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور اس کی آخری رسومات ادا کریں۔ کانوگان خاندان کے لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت اس لیے چاہی تھی کہ مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جسم مبارک پر اپنی چادر ڈال دی تھی، اور یہ بات بھی خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ ہندو عورت حضرت لال شہباز قلندر سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی درخواست سن کر فرمایا، میری اجازت کی کیا ضرورت ہے، تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو لے جاؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر کی اجازت کے بعد اس لڑکی کے رشتہ داروں نے لاش اٹھانے کی کوشش کی مگر اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے لاش بہت زیادہ وزنی ہو گئی ہے۔ دوسرے عزیزوں کو بلایا گیا مگر 15-20 افراد مل کر بھی ایک کمزور سی عورت کو نہ اٹھا سکے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے لاش زمین سے چپک گئی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو حیران اور پریشان دیکھ کر فرمایا، اگر تم پورے شہر کے ہندوؤں کو بھی جمع کر لو گے تو یہ لاش نہ اٹھ سکے گی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ بات سن کر کانوگان خاندان کے لوگوں پر گویا ایک دہشت سی طاری ہو گئی۔ آخر اس بد نصیب عورت سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے؟ خاندان کے بوڑھے افراد نے حضرت لال شہباز قلندر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ گناہ اور ثواب کی بات نہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اس عورت کی قسمت میں جلنا نہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اس عجیب و غریب صورتحال سے اہل علاقہ بہت پریشان تھے۔ اگر تم اسے دفن کرنے کا وعدہ کر لو تو لاش اٹھ جائے گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر ایسا ہی ہوا۔ ہندو عورت کی ارتھی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھا اور اسے مسلمانوں کے طریقے پر دفن کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامت دیکھ کر کئی ہندو آپ کے دستے مبارک پر ایمان لے آئے۔ اس عورت کی قبر آج بھی سیون میں موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کے موقع پر اس کی قبر سے مہندی اٹھتی ہے اور مہندی مختلف علاقوں سے گزر کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر لائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر اور حاکم بصرہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا۔ محترم ناظرین،
हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत जलालुद्दीन सुरख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बार हज बैतुल्लाह में 3 बार रहने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में सियाहत करने के लिए और औलिया कराम की जियारत करने के लिए निकले। इसी दौरान वो इराक पहुँचे और हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर हाजिरी दी। उसके बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत जलालुद्दीन सुरख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से तशरीफ ले गए। वो दोनों सुर्ख लिबास पहने हुए थे और हाथों में कदरे लंबी तस्बीह थामे हुए थे। दोनों के पास तस्बीह भी सुर्ख रंग के चमकदार पत्थर के दानों से बनी हुई थी, जिन पर दोनों औलिया कराम विर्द कर रहे थे। दोनों ने टोपियां भी सुर्ख रंग की पहनी हुई थी। सरहदी मुहाफिजीन ने इन दोनों को देखा तो उन्हें मशकूक समझकर रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस काम की खातिर आए हो? हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत जलालुद्दीन सुरख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम सैयद हैं और इल्म के हसूल की तलाश में निकले हैं। सुना है कि बुखारा इल्म फजला का मरकज है। हम इस उलमा फजला से फैज हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी कोई गर्ज नहीं, हमें उलमा इकराम तक पहुंचा दिया जाए। सरहदी मुहाफिजीन ने आप दोनों औलिया कराम को उलमा और फजला के पास पहुंचाने की बजाय हाकिम बुखारा के दरबार में पहुंचा दिया। हाकिम बुखारा ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत जलालुद्दीन सुरख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तुम कौन लोग हो और यहाँ क्या करने आए हो? दोनों औलिया कराम ने फरमाया, हम सैयदजादे हैं और यहाँ के उलमा मशाइख से मुलाकात की गर्ज से आए हैं। हाकिम बुखारा ने कहा, तुम्हारा ये दावा कि तुम लोग सैयद हो, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है और क्या जवाज है? दोनों औलिया कराम ने फरमाया, हमारा इकरार दावा ही हमारे दलील और सबूत है, उसके बाद किसी दलील सबूत की जरूरत नहीं। हाकिम बुखारा ने कहा, यहाँ बहुत से लोग अपना कद ऊंचा करने और अपनी शान ऊंची करने के लिए सैयद होने का झूठा दावा करते हैं, हालांकि वो सैयद नहीं होते। आखिर सैयद या गैर सैयद में कोई फर्क तो होगा, और ये कि सैयद को परखने का कोई पैमाना या तरीका तो जरूर होगा। कोई शख्स जुबानी दावा कर दे कि वो सैयद है तो इसका ये जुबानी दावा उसके सैयद होने की दलील और सबूत कैसे हो सकता है? खानदान सदात के सपूतों ने हाकिम बुखारा से पूछा, तुम्हारे नजदीक सैयद को परखने का क्या पैमाना और तरीका है? हाकिम बुखारा ने कहा, मैंने सुना है कि आग किसी सूरत भी सैयद को नहीं जला सकती, वो आग से हमेशा महफूज और मामूर रहते हैं। अगर तुम इस पैमाने पर पूरा उतरो तो मैं तुम्हें सैयद मान लूंगा। कहो तो मैं आग का अलाव तैयार करवाऊं ताकि तुम अपने आप को सैयद साबित कर सको। सैयदजादों ने आसमान की तरफ निगाह की और रब्बे कादर कदीर से दरख्वास्त की कि या बारी ताला, तूने अपने महबूब बंदे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग को गुलजार से बदल दिया था। तेरे कब्जा कुदरत में सब कुछ है। आज तेरे नाम लेवाओं का इम्तहान लिया जा रहा है। हमें अपनी रहमत और अनायत से सरफराज और सुरखरू फरमा। या रब्बुल आलमीन, सैयदजादों की इज्जत और हुर्मत सिर्फ तेरे हाथ में है। आज उसे अपनी कुदरत कामला से बचा ले। कम अकल हाकिम ने आग को सैयद पर असर न करने का पैमाना बना लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम तेरी बारगाह में इल्तिजा और दुआ करते हैं, इस बेवकूफ हाकिम को शिकस्त से दो चार कर और हमें फतह से हमकनार कर, क्योंकि ये भी एक जंग है जिसे इस हाकिम ने छेड़ डाला है। हम नातमा हैं, हम गुनाहगार और हताकार हैं। तू हमारी हताओं की तरफ नजर न कर, बल्कि अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की इज्जत और वक़्त कायम व दायम रख, वरना ये लोग मजाक उड़ाएंगे और तमाशा बनाएंगे और सादात की इज्जत हाक में मिलाने की नापाक जिसारत करेंगे। अब दोनों सैयदजादों ने हाकिम बुखारा से कहा कि आग जलाओ, आग में से गुजरने के लिए तैयार है। हाकिम बुखारा ने फौरी तौर पर अपने कारिंदों को बुलाया और हुक्म दिया कि आग का अलाव तैयार करो ताकि साबित किया जा सके कि ये अजनबी अफराद सैयदजादे हैं भी या नहीं। हाकिम के हुक्म पर अमल हुआ। सैकड़ों कारकुनों ने चंद ही घड़ियों में आग का दहकता हुआ अलाव तैयार कर दिया। अब हाकिम बुखारा ने सैयदजादों से कहा,
तुम में से कौन पहले इस आग में से गुजरेगा। हाकिम बुखारा के सवाल पर दोनों सैयदजादों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फौरी तौर पर हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इस आग में से गुजरूंगा। रब्बे कादिर व कदीर के हुक्म से ये आग मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। तुम पर साबित हो जाएगा कि हम सैयदजादे हैं या नहीं। आज अगरचे ये सैयद होने का कोई पैमाना नहीं, लेकिन तुमने जिद की है तो फिर रब्बे करीम भी अपनी कुदरत का नजारा जरूर दिखाएंगे। हाकिम बुखारा ने कहा, फिर देर किस बात की है, इससे पहले कि आग ठंडी पड़ जाए इसमें से गुजर जाओ। हजरत जलालुद्दीन सुरख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दौड़ कर आग में छलांग लगा देते हैं। इस मंजर को देखने के लिए जो हजूम इकट्ठा हो गया था, जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि हजरत जलालुद्दीन सुरख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आग के अलाव में से सही सलामत बाहर निकल आए और आते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाया। हजरत जलालुद्दीन सुरख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमे से मुखातब होकर फरमाया, ऐ लोगो, याद रखो कि इंसान मजबूर, बेबस और कमजोर नातवा है। कोई भी शख्स अपने रब ताला की मर्जी के बगैर किसी किस्म की कोई सलाहियत और ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकता। कुदरत और ताकत रखने वाली सिर्फ और सिर्फ रब्बे जुल जलाल की जात पाक है। इसकी कुदरत और ताकत ने जमीन और आसमान को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। इस आग में से सही सलामत गुजरने में मेरा कोई कमाल नहीं। हाकिम वक्त ने हमें आजमाइश में डाला और मेरे रब ताला ने अपने फजलो करम से हमें इस आजमाइश से सुरखरू किया। अब अगर हाकिम बुखारा चाहे तो मेरे साथी हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आग में से गुजरने के लिए तैयार है। मगर हाकिम बुखारा फौरी तौर पर तख्त से उतर आया और दोनों सैयदजादों के कदमों में गिर गया। उसने माफी मांगी और इस जिसानत की तलाफी के लिए उसने हजरत जलालुद्दीन सुरख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद जलालुद्दीन सुरख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वाक़े के बाद चंद माह बुखारा में गुजारे। इस दौरान वहाँ के उलमा और मशाइख से जी भर के मुलाकातें की और उनसे रूहानी फैज हासिल किया।